السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا زمانہ مدینہ ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی مدینہ میں بھی نازل ہوئی اور اس کے بعد مکہ میں بھی نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کا نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، یعنی جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کا یہ خلاصہ ہے۔ ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ۔ اس کا چوتھا نام السبع المثانی ہے، یعنی 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی۔ اس کا ایک نام قرآن عظیم بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن عظیم سکھاتا ہوں، اور آپ نے پھر سورہ فاتحہ اس کو سکھائی۔ اس کا چھٹا نام سورۃ الشفاء بھی ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے، خاص طور پر زہریلی بیماریوں کے لیے اس سورت کو شفا کہا گیا ہے۔ اس کے دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الصلاح بھی ہے کہ یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ اسے سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی دم کرنے والی سورت، اور اسے الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی خزانہ۔ اس کا 9واں نام اساس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد۔ بہرحال اس کی بہت سی فضیلت ہے، جسے ہم آج شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ کلمات بعض کے نزدیک اس سورت کی آیت ہیں اور بعض کے نزدیک نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو نازل کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سورتوں میں فرق بسم اللہ کے نازل ہونے سے سمجھتے تھے، کہ جب ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی تو بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوتی، جس سے پتہ چلتا کہ یہ سورت نازل ہو چکی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَعِندَهُ جبرائیل، اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور فرمایا کہ آسمان کا آج یہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ آپ 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو وہ یہ 2 قسم کی آیات نبی علیہ السلام کو دے کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات اور انجیل میں بھی اس قسم کی آیات نہیں اتری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا نہایت مہربان۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔
इय्याका नअबुदु, ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और ख़ास तुझी से हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिवाय उन लोगों के जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों का रास्ता। इसके बाद आमीन कहना सुन्नत से साबित है कि ए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। अब हम इसकी कुछ थोड़ी सी मुख्तसर सी तफसीर करेंगे और इसको दोबारा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी इसकी फ़जीलत हमने सुन ली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कलिमात का हर काम के शुरू में पढ़ना मसनून करार दिया है, बाइस बरकत करार दिया है, और फरमाया कि जो किसी भी काम के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वो काम बेबरकत है। खाना खाना, सोना, जागना, घर में दाखिल होना और बहुत से ऐसे काम जो हम दिन में करते हैं, इनके शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ लेना सुन्नत से साबित है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अल्हम्द के दो माना पाए जाते हैं। एक तो ये है कि अश्शुक्रु लहू, यानी तमाम नेमतों का शुक्र अल्लाह ही के लिए है कि वो इनाम करने वाला है और हम उसी का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा इसका माना ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर सिफ़त अल्लाह ताला में कामिल पाई जाती है, जबकि किसी दूसरे के अंदर इस तरह की सिफ़ात नहीं पाई जाती। अल्हम्द में जो अल है इसका माना होगा ख़ास, ये इस्तिग़राक़ के लिए भी आता है, यानी कि बेइंतहा हर किस्म की तारीफ़। और इस आयत में दूसरी चीज़ जो बयान की गई है वो है रब। लफ्ज़ रब का माना होता है पालने वाला, मालिक, मुतसर्रिफ़, यानी अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने वाला। तो ये नाम सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। अगर हम किसी और के लिए इस्तेमाल करें तो जिस तरह अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मसलन रब्बुस्सैफ़, रब्बुद्दार, तलवार का मालिक, घर का मालिक, तो ये इजाफ़त के साथ होगा। सिर्फ़ रब किसी को नहीं कहा जा सकता। सिर्फ़ लफ्ज़ रब हम अल्लाह ही के लिए बोलेंगे, जिसका माना है पालने वाला, आलमीन, तमाम जहानों को। इसमें एक माना तो ये है कि तमाम मखलूक़ात के जहान, मसलन ज़मीन व आसमान, समंदर, दरिया, खुश्की, इसी तरह इंसानों का एक जहान है, जिन्नों का एक अलग जहान है, रिश्तों का एक आलम है, जहान है, और बाकी तमाम मखलूक़ात का भी जहान है। और इसका एक मतलब ये है कि जिस तरह इंसान के दुनिया पर आने से पहले आलम अरवा है, यानी रूहों का जहान, फिर इससे आगे ये आलम दुनिया यानी दुनिया का जहान, फिर इसके बाद आलम बरज़ख, यानी मरने के बाद इंसान जितना वक्त कब्र में गुजारता है, बरज़ख का माना होता है पर्दा, फिर इसके बाद आलम महशर, यानी हशर में जब सब लोग इकट्ठे होंगे, और इसके बाद कितने आलम और आएंगे, कितने जहान और होंगे, ये अल्लाह ही जानता है। तो इन तमाम जहानों का रब, मालिक, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अर्रहमानिर्रहीम, रहम करने वाला, नहायत मेहरबान। ये अल्लाह ताला के दोनों नाम लफ्ज़ रहमत से निकले हैं, रहमत से मुश्तक़ हैं, और ये दोनों ही यानी करीबुल माना है कि रहमान का बाज़ लोगों ने ये माना किया है कि दुनिया में रहम करने वाला, और अर्रहीम आखिरत में रहम करने वाला। बाज़ ने ये माना किया है कि अर्रहमान का माना पूरी दुनिया के मुस्लिम, काफिर, तमाम लोगों पर रहम करने वाला, और रहीम का माना ये है कि सिर्फ़ मोमिनीन के ऊपर रहम करने वाला। बहरहाल ये दोनों लफ्ज़ बिल्कुल करीबुल माना हैं और दोनों मुबालगे के लफ्ज़ हैं, और इसमें अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत बहुत वसी दर्जे की बयान की गई है। मालिकी यौमिद्दीन,
मालिक, ये मलिक भी पढ़ा जाता है और मालिक भी, यानी वो बादशाह है या मलकियत रखता है क़यामत के दिन की भी। अद्दीन यानी हिसाब व किताब का दिन, ऐसा दिन जिसमें इनके बुरे और अच्छे अमाल का बदला तोल कर पूरा कर दिया जाएगा। इन आयात में अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी 4 सिफ़ात बयान की गई हैं। पहली सिफ़त है रब, दूसरी है अर्रहमान, तीसरी रहीम, चौथी मालिक। तो जब हम अपने दुनिया के मामलात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी की सरबराही को कबूल करने से पहले हम यही 4 चीज़ें उसके अंदर ढूंढते हैं कि क्या ये हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा, क्या ये हमारे ऊपर रहमो करम करेगा, और क्या ये हमारी ज़रूरत के वक्त हमारे दुश्मन से बदला लेकर दे सकेगा। जिसमें हम ये चारों सिफ़ात देखते हैं उसको हम अपना हुक्मरान तस्लीम कर लेते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी ये चारों सिफ़ात यहाँ बयान की हैं कि इंसानों में तो ये सिफ़तें मुकम्मल तौर पर नहीं पाई जा सकती, लेकिन अल्लाह ताला में ये चारों सिफ़ात बदरजाए अतम मौजूद हैं कि वो रब भी है और वो रहमान भी है और रहीम भी है, और फिर वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत इंसान के और अल्लाह ताला के दरमियान तकसीम है। जब पहली आयत बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला हर आयत का जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की, मेरे बंदे ने मेरी यानी हुकूमत और मेरी मलकियत का इकरार कर लिया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़निस्फ़ुहा लिअब्दी वलिअब्दी मा सअला, कि मेरे बंदे के लिए ये आधी सूरत है और आधी सूरत मेरे लिए है, और मैं अपने बंदे को वही दूंगा जिसका उसने सवाल किया। जब भी हम पहली आयत पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और ख़ास तुझी से हम मदद चाहते हैं। इसमें इया का है माना ख़ास, और का इसका माना है तुझ या तू, तेरी। नाबुदु में जो नून है इसका माना होगा हम, और आइन बा दाल का माना इबादत। ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं। इबादत की भी 3 अक़साम हैं, यानी वो इबादत जो जिस्मानी तौर पर की जाती है, और वो इबादत जो माल के साथ की जाती है, माल खर्च करके, और वो इबादत जिसमें सिर्फ़ हमारी ज़बान इस्तेमाल होती है, यानी कौली, फ़ेली और माली इबादत, या कौली और बदनी और माली इबादत। तो मुसलमान का काम ये है कि उसकी तमाम इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं। व इय्याका नस्तईन, फिर बंदे को अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई कि वो कहे कि और ख़ास तुझ ही से, नस्तईन ये इस्तिआनत से है, नून का माना होगा हम ख़ास तुझसे ही मदद चाहते हैं, यानी अल्लाह के सिवा किसी और से मदद चाहना ये शिर्क है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि हम आम हालात में जो एक दूसरे से काम लेते हैं उसमें भी हमारा ज़हन यही होता है कि ये जिससे हम काम करवा रहे हैं इसके दिल में रहम, मोहब्बत, इताअत ये अल्लाह ने ही डाली है। अल्लाह ने ही इसको हमारे लिए वक्फ़ किया है कि हमारा ये बेटा, बेटी या बड़ा या छोटा, हम इससे खिदमत ले रहे हैं या अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, इससे हम इस्तिआनत तलब कर रहे हैं। तो असल पीछे मदद करने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो कोई शख्स किसी दूसरे की मदद करता है, अगर नामंजूर हो तो कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। यानी इस आयत में हमने 2 चीज़ों का इकरार किया। पहला अपने अक़ीदे का कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, और दूसरा कि हम तुझसे ही इस्तिआनत चाहते हैं। हमारा मददगार और हकीकी मददगार सिर्फ़ तू ही है।